Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today we are going to complete chapter number 7, Preposition and its kind, page number 56. As you know, we have already completed preposition. What is preposition? Preposition क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. And first kind of preposition, I have already told you. As I told you about preposition, preposition is placed before a noun or pronoun. हम preposition को noun और pronoun से पहले यूज करते हैं to show the relation between two words, right? So, and first kind of preposition, there are three kinds of preposition: preposition of time, preposition of position, and preposition of direction. Preposition of position, I have already told you. Preposition of position मतलब place, same होता है, okay? As I have already told you, preposition of place, preposition of time, and preposition of direction. Place वाला हम कल complete कर चुके हैं. Today we are going to cover preposition of time and preposition of direction. Preposition of place shows where the word, the noun or pronoun is, कि वो चीज़ कहाँ हो रही है, right? जो relation बताता है दो words का, उसको हम बोलते हैं. The next second one is preposition of time. Preposition of time when an event happens or happened. Preposition of time से पता चलता है कि कोई भी चीज़, कोई भी event जो है वो कब होगा या हो चुका है या कब होगा. when बताता है basically. For example, Ricky swims on Saturdays. Ricky जो है वो Saturday को ही swim करता है, मतलब वो स्विमिंग करता है Saturday को. So here on words show preposition when an event happens. ये शो करता है कि वो कब करता है. on से ये पता लगता है कि जो on is preposition first of all. second, इससे ये पता चलता है कि जो रिकी है वो कब स्विम करता है. when an event happens, कब होता है वो? on Saturday. ठीक है. so इससे पता चलता है कि कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ कब होती है, तो उसको हम बोलते हैं preposition of time. As I already told you about this, preposition of place ये हम कल कर चुके हैं. Now here we will do the first one here, when, मतलब कि वो जो preposition है कब होता है. Next one here you can see is preposition of time. As I told you, preposition of time क्या होता है? Preposition of time में जो words आते हैं in, on, at, before and after, right? So here when मतलब इसके क्या examples होंगे? First we will see through examples. For example is my birthday falls in January. मेरा birthday जो है वो जनवरी में आता है, right? So here you can see in use हो रहा है. in से ये पता चल रहा है कि कब आता है, जनवरी में. So when, right? when का पता चल रहा है कि वो कब आता है, जनवरी में आता है. मेरा बर्थडे जनवरी में आता है, right? So in shows when. The preposition of time का पता चल रहा है, right? One more example here. My vacation ends on Monday. मेरी जो vacation है, मेरी जो छुट्टियां हैं वो मंडे को ख़त्म होंगी. कब ख़त्म होंगी? when मतलब कब ख़त्म होंगी? on Monday. So on is a preposition of time in this sentence. उससे पता चल रहा है कि वो चीज़ कब होगी, when होगी. Next example is it gets cold at night. It gets, ठंड में रात को बहुत ठंड हो जाती है. तो कब ठंड होती है? at night. Here you can see at is used as a preposition of time. कि ये पता चल रहा है कि कब ठंड होती है, वो होती है night को, right? This is at, in, on. These are preposition of time. I hope you understood preposition of time. Now going to learn last kind of preposition, preposition of direction. Preposition of direction, last one. Preposition of direction, direction in which someone or something comes and goes. इससे पता चलता है कि वो जो डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन की कोई भी चीज़
आ रही है या जा रही है, किस डायरेक्शन से वो पता चले, उसको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, निक्की इज थ्रोइंग अ बॉल एट देम. निक्की जो है वो बॉल थ्रोइंग कर रही है, मतलब वो थ्रो कर रही है, बॉल फेंक रही है उन पे. एट देम. सो ये पता चल रहा है डायरेक्शन. थ्रोइंग मतलब डायरेक्शन पता चल रहा है कि वो फेंक रही है. सो एट से पता चल रहा है किस पे फेंक रही है वो. एट देम, उन पे. तो एट इज अ प्रपोजिशन इन दिस सेंटेंस. एंड हेयर डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन. एट से पता चल रहा है कि वो किस तरफ फेंक रही है. वो किस तरफ फेंक रही है, उन पे फेंक रही है, तो उनकी तरफ फेंक रही है. राइट. सो एट इज यूज्ड एज प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कि वो उनकी तरफ फेंक रही है. वी विल लर्न इन विच डायरेक्शन, मतलब लास्ट वन इज इन विच डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन में होती है. इन विच डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन मतलब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टू, इन टू, ऑफ और फ्रॉम. फॉर एग्जाम्पल वी विल लर्न दिस कि किस डायरेक्शन में है. वी वेंट टू लंडन लास्ट वीक. हम लोग जो थे वो लंदन गए थे. कब गए थे, लास्ट वीक, पिछले वीक. वी वेंट टू इसलिए यूज हुआ कि हम लोग कौन सी, इससे पता चलता है किस डायरेक्शन, मतलब हम लोग गए थे. कहाँ गए थे, लंदन. तो टू इज यूज्ड एज अ डायरेक्शन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही वेंट अप द हिल. वो हिल के ऊपर चला गया. ही वेंट अप द हिल. सो अप से पता चल रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में गया, वो हिल के ऊपर चला गया. ही वेंट अप द हिल. To and up is used as a preposition of direction. I hope you understood the short revision now. We have learned three kinds of preposition. Preposition of time, से पता चलता है when कि वो चीज़ कब हुई. In, on, at, before, after हम उसमें यूज़ करते हैं. Where मतलब preposition of place और position कि वो चीज़ कहाँ हुई. Under, above, in, on, at we use, right? नेक्स्ट वन इज इन विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में हुई. प्रपोजिशन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन के लिए वी यूज टू, इनटू, ऑफ और फ्रॉम. यू कैन सी हियर प्रपोजिशन ऑफ टाइम से पता चलता है कि वो चीज़ कब हुई. फॉर एग्जाम्पल, देयर इंटरव्यू विल बी ओवर बाय 5 PM कि वो चीज़ कब होगा, 5 PM तक होगा उनका इंटरव्यू. राइट. ऐसी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होता है. बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल कि वो कहाँ पर है, बुक्स जो हैं वो टेबल के ऊपर हैं. राइट. सो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन बोथ आर सेम. प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल, द बॉय फेल ऑफ द साइकिल. वो साइकिल से गिर गया. राइट. तो वो डायरेक्शन पता चले कि वो क्या, कैसे हुआ, वो साइकिल से गिरा ना. राइट. आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.